Hello students, today we shall start our poem A Prayer for My Daughter. Here this poem is written by W.B. Yeats, William Butler Yeats. This poem was written in the year 1919 and was published in 1921. His daughter's name was Annie. He had been living in one tower in Thor Bellely. At that time, Anglo-Irish War was being fought, and his daughter was born. After the 2 days of the birth of his daughter, he composed this poem. This poem is of 10 stanzas. In the first stanza, you see, once more the storm is howling, and half hid under this cradle hood and cover lit, my child sleeps on. Here I shall give you some introduction. The poet lived in Lady Gregory's house. Lady Gregory supported the poet a lot because he lived in her house, and her house was in the forest, which is also called Gregory Wood. Wood means forest, and there was a hill also. Here the poet says that one more time the storm is howling. It means he had seen the storm in the form of war, Anglo-Irish War, and now this time one storm is also howling in his mind. And he says that his half hid means half covered child is sleeping. His daughter is sleeping under the cradle hood, under the cradle. Hood means cover, cradle hood, cradle cover. She is sleeping. He says that when the storm comes, only two things are the obstacles for preventing the storm. Which two things were there? Which two things are there? Those were Gregory's Wood and one hill, one bare hill that prevent the storm coming from Atlantic Ocean and its wind. And then he says that there is no obstacle but Gregory's Wood and one bare hill, whereby the haystack and roof leveling wind bred on the Atlantic can be stayed. And for an hour I have walked and prayed because of the great gloom that is in my mind. Here, haystack means heap of grass. Okay. Bread is the past form of breed. Gloom means sadness. So here the poet says that that storm levels the roof, that wind of a storm levels the haystacks and roofs, etc. The poet was walking here and there near the cradle and praying for his daughter. He had great sadness in his mind, so he was very impatient. बेटा अब ये स्टेंजा का हिंदी में मीनिंग देख लेते हैं। ये जो पोएम है प्रेयर फॉर माय डॉटर, जैसे कि नाम से ही समझ में आता है कि अपनी डॉटर के लिए वो प्रेयर कर रहे हैं। अब वो प्रेयर क्या होगी, वो क्या क्या चाहते हैं अपनी बेटी के लिए, भगवान से क्या विश मांगते हैं, क्या प्रे करते हैं, ये सब तो हमको आगे समझ में आएगा। पहले इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ये इन्होंने जो पोएम लिखी है 1919 में लिखी है और ये जो पब्लिश हुई 1921 में हुई। इनकी डॉटर जिसका नाम एनी था, उसके बर्थ के 2 दिन बाद ही इन्होंने ये पोएम लिखी। 10 स्टेंजा की ये पोएम है। ये जब इनकी बेटी हुई तो
पोएट ग्रेगरी नाम की लेडी के घर में रहा करते थे। एक टावर पे उनका घर था। अब वो टावर से वहाँ पर उनको दिखाई देता था जैसे तूफानी हवाएं आती अटलांटिक ओशन से, तो वो सब वहाँ आती थी। और उस समय ये बताते हैं कि जब भी स्टॉर्म आता था तो उसको केवल वहाँ की दो चीज़ें ही रोक सकती थी वो स्टॉर्म को। अटलांटिक ओशन से आने वाली वो जो स्ट्रॉन्ग विंड्स है, स्टॉर्म है, उसको रोक सकते थे। कौन कौन सी दो चीज़ें? एक तो ग्रेगरी का वुड, मतलब वो वहाँ का जो जंगल था जिसका नाम भी वो ग्रेगरी का वुड ही था, वुड मतलब फॉरेस्ट। और एक बेयर हिल थी जिस पर कोई झाड़ पेड़ पौधे वेजिटेशन ज़्यादा नहीं था, तो वो बेयर हिल। तो ये दो चीज़ें उसको रोक सकती थी। वो जो स्टॉर्म था, वो विंड्स जो थी इतनी स्ट्रॉन्ग होती थी कि घरों की छत घास के ढेर तक उड़ाकर ले जा लेती थी। अब यही नज़र डालते हैं कि उनकी जो बेटी है वो पालने में सोई हुई है। अब ये अपनी बेटी पे नज़र डालते हैं कि बहुत ही मासूम सी बच्ची सोई हुई है और यहाँ उनके दिमाग में एक बवंडर चल रहा है, उनके भी दिमाग में एक तूफान चल रहा है कि उनकी जो बेटी है वो उसके लिए चिंतित है, उसके लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? क्योंकि उस समय जो वॉर चल रहा था, वो वॉर का जो उन्होंने डिस्ट्रक्शन देखा, ये सबसे वो बहुत परेशान हो चुके थे। और दूसरी एक चीज़ उनके दिमाग में ये भी थी कि ये उस समय रिजेक्टेड पर्सन भी थे। मॉड गाने के द्वारा, मॉड गाने इनके नाम की इनकी वो थी, क्या बोल सकते हैं, बिलव्ड थी, और उन्होंने इनको रिजेक्ट कर दिया था, जिसकी वजह से इनके मन में भी निराशा थी। तो ये सब चीज़ों की वजह से वो अपनी बेटी के लिए काफ़ी चिंतित थे और उसके लिए वो प्रे कर रहे थे और इधर उधर बेचैनी से चहलकदमी कर रहे थे। नाउ यू कैन सी द सेकंड स्टैंजा, द एक्सप्लेनेशन. The poet says, the poet was walking for an hour. He was walking here and there. He was doing so, and he was hearing sea wind scream, means noise, upon the tower on which he was living then. Those sounds the poet could hear under the arches of the bridge, also in the elm trees stood by the flooded rivers. He was imagining about the coming future years. At the time, he says that future is uncertain. Bloodshed, anarchy, cruelty, and other such evils may have prevailed all around. Here, you see the lines, the last two lines, dancing to a frenzied drum. It means evil forces predicting war and bloodshed out of murderous innocence of the sea. It means here we see oxymoron. Oxymoron means two things opposite to each other. Means here the poet says that the innocent action of the sea has destructive result. Innocent action of the sea has destructive results. Sea is innocent as it has no intention of destruction. Here sea is supposed to be innocent, but still it makes destruction. This is called oxymoron. Means when we see the two things opposite to each other. Okay. Yes, explanation in Hindi. यहाँ पोएट सी विंड की स्क्रीम को, उसकी आवाज़ को, उसकी चीखों को सुन पा रहे हैं टावर पर से जहाँ पर वो रहते थे। ये साउंड्स वो कभी पुल के नीचे से आती हुई सुनाई देती है उनको, कभी झाड़ों से होकर, पेड़ों से, एल्म ट्रीज से होकर। और वो एल्म ट्रीज कहाँ पर हैं? वो जो बाढ़ में जो नदियों के आसपास पेड़ पौधे हैं, वो जो पेड़ पौधे हैं वहाँ से ऐसा लगता है इनको ये तेज़ हवाएं और उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। यहाँ वो इमेजिन कर रहे हैं कि आगे आने वाले जो ईयर्स हैं वो कैसे होंगे,
क्योंकि उन्होंने इतना विध्वंस देख लिया, वर्ल्ड वॉर देख लिया, उसमें उन्होंने इतना ब्लडशेड वगैरह देख लिया, तो वो इमेजिन कर सक रहे हैं कि फ्यूचर ईयर्स जब आएंगे तो वो शायद इससे भी बुरे हो सकते हैं, जिसमें कि ब्लडशेड होगा, रक्तपात होगा, एनार्ची होगी, अराजकता होगी, सब मनमानी करेंगे, क्रूएल्टी, क्रूरता होगी और ऐसी कई बुराइयां पनपेंगी। यहाँ उनको चिंता हो रही है अपनी बेटी की कि मेरी छोटी सी बेटी इन सब चीज़ों को कैसे झेल पाएगी। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें उन्होंने अभी देखी हैं वॉर के समय में। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि वो एक पिता हैं तो अपनी बच्ची के फ्यूचर के लिए चिंतित हो रहे हैं। तो यहाँ बोला गया है डांसिंग टू अ फ्रेंजिड ड्रम। इसका मतलब यह है कि इविल फोर्सेस, जो बुरे प्रभाव होते हैं, वो बता रहे हैं, प्रेडिक्टिंग वॉर के बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं, उस समय होने वाले ब्लडशेड के बारे में। अब यहाँ मर्डरस इनोसेंस ऑफ द सी, यहाँ थोड़ा ऑक्सीमोरन है, यानी विरोधाभास है। इसको सागर को, समुद्र को इनोसेंट भी बोला गया है, लेकिन यही इनोसेंट समुद्र की जो लहरें होती हैं डिस्ट्रक्शन करती हैं, चीज़ों को डिस्ट्रॉय करती हैं। बस यहाँ यही बताया गया है। तो ये इन सब चीज़ों से काफ़ी परेशान है। अब देखते हैं बेटा थर्ड स्टेंजा। हियर द पोएट एक्सपेक्ट्स दैट हिज डॉटर मे बी ग्रांटेड ब्यूटी, मीन्स she should be beautiful, but not so that distracts the eyes of strangers or herself also when she would see herself in a mirror, because he thinks that such beauties, means beautiful ladies, become arrogant, and because of their beauty they ignore the quality of head and heart. Means they consider their beauty a sufficient end. See there, sixth line, last verse, sufficient end. They consider their beauty as sufficient end. Means they ignore the qualities of head and heart. Sufficient end means they ignore the quality of head and heart, and they lose their natural kindness and heart-revealing intimacy. Heart-revealing intimacy means sincere love and affection. These qualities they lose because of their arrogance, which makes them choose this heart-revealing intimacy and natural kindness. These qualities makes them choose right things in life. But in their arrogance, they lose these things and they never find a right life partner for their life. And the poet doesn't want this for his daughter. Now explanation in Hindi. May she be granted beauty and yet not up to never find a friend. यहाँ बेटा पोएट बोलते हैं कि वो एक्सपेक्ट करते हैं अपनी डॉटर के लिए कि वो सुंदर तो हो, लेकिन इतनी सुंदर न हो कि हर कोई आता जाता व्यक्ति उसकी सुंदरता के प्रति आकर्षित हो, या वो खुद जब अपने को आईने में देखे तो खुद भी वो खूब इतराए, खूब फूली न समाए और इतनी सुंदरता उसको कहीं घमंडी न बना दे। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इस तरह की जो ब्यूटीज़ होती हैं, इस तरह की ब्यूटीफुल लेडीज़ जो होती हैं, बहुत ज़्यादा सुंदरता की इसमें अभिमान में वो किसी को कुछ नहीं समझती और वो अपनी जो नेचुरल क्वालिटीज़ हैं वो खो देती हैं। अब नेचुरल क्वालिटीज़ क्या है? वो जो नेचुरल काइंडनेस होती है, हार्ट रिवीलिंग इंटीमेसी होती है, मतलब सिंसियर लव और अफेक्शन होता है। ये यहाँ क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि ये जो इनकी बिलव्ड थी वो खूब सुंदर थी, खूब ब्यूटीफुल थी, लेकिन वो एरोगेंट थी और इसकी वजह से जो उनकी बेसिक क्वालिटी थी, जो काइंडनेस थी, अफेक्शन था, नेचुरल काइंडनेस, ये सब उनका दब चुका था और एरोगेंस में उन्होंने भी दूसरे व्यक्ति का चुनाव कर लिया और इनको छोड़ दिया, इनको रिजेक्ट कर दिया, जबकि इनका लव सिंसियर था। तो यहाँ वो अपनी बेटी के लिए ऐसा कुछ नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि सुंदरता तो हो,
लेकिन इतनी अधिक तो ना हो कि वो अपनी सुंदरता के घमंड में अपनी नेचुरल क्वालिटीज़ को भूल जाए या ख़त्म कर दे। वो नेचुरल क्वालिटीज़ क्या होती हैं कि वो इंसान को सही चुनाव करने में मदद करती है, ये जो क्वालिटीज़ है। लेकिन एरोगेंस में क्या होता है, इंसान गलत चुनाव कर लेता है। ये क्वालिटीज़ की नहीं होने की वजह से गलत लाइफ पार्टनर भी चूज़ कर लिए जाते हैं। जो इनके बिलव्ड ने भी किया वही गलती उन्होंने भी की, इनके बिलव्ड ने इनको रिजेक्ट करके उन्होंने जिससे भी शादी की वो गलत चुनाव सिद्ध हुआ था। और पोएट यही चीज़ अपनी बेटी में नहीं चाहते हैं। पोएट अपनी बेटी में इतनी सुंदरता तो नहीं चाहते हैं। Yes, beta. See the fourth stanza. From Helen being chosen found flat and dull, up to horn of plenty is undone. Beta, see here. Poet here gives reference of Helen. Now, who was Helen? In Greek legend, Helen was given in marriage to Menelaus, the king of Sparta. She was very beautiful, Helen. So she was married to king of Sparta named Menelaus. She was very, very beautiful, but she was not satisfied with her life and she ran away with Paris, who was the prince of Troy. Troy is the name of country. This caused a 10-year war. Troy and Greek were destroyed both. Here, Helen's beauty is used as a symbol of destructive beauty. Here, in these lines, we see Helen found her life. See, first lines of this stanza. Helen found her life flat and boring after marriage, and she got a lot of trouble from a fool. Fool means Paris, king of Troy, with whom she ran away, but had to suffer a lot because of him. In third line, see, queen is referred. See here, third line, queen is referred to Venus, one more beautiful lady. Venus, the Roman goddess of beauty and love, and it is said that she had born from sea foam, sea spray, and was found floating on a lotus. As she was fatherless, she had no restrictions and had her own way, means she was self-willed. What she wanted, she did. She was given in marriage to Hephaestus, who was lame, ugly looking iron smith of gods. But Venus was also not satisfied with her husband, although he was nice. She fell in love with Ares, but suffered shamefulness later because of her unfaithfulness. Venus is used as a symbol of vainglory and false love. Poet says that it is certain that beautiful women become crazy of their beauty and takes wrong decisions as their natural qualities fade away because of their arrogance of beauty. And their horn of plenty means prosperity are of no use. It is useless and waste. नाउ एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। बेटा यहाँ पर पोएट ने दो बहुत सुंदर स्त्रियों का एग्जाम्पल दिया है कि हेलन काफ़ी सुंदर लेडी रही। वो ग्रीक मान्यताओं के अनुसार उनकी मैरिज हुई थी मेनलॉस से, जो किंग ऑफ स्पार्टा थे। वो काफ़ी सुंदर होने की वजह से एरोगेंट भी थी और अपनी मैरिड लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, वे पेरिस जो ट्रॉय का राजकुमार था उसके साथ वो भाग गई। अब हुआ ये कि किसी के साथ भाग गई तो उनके जो हस्बैंड थे राजा, वो उनके बीच में और वो ट्रॉय
ट्रॉय और ग्रीक के बीच में बहुत भयंकर युद्ध हुआ और दोनों ही नष्ट हो गए। तो यहाँ पर हेलेन की ब्यूटी एक डिस्ट्रक्शन का सिंबल मानी जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी सुंदरता की ही वजह से दो देश बर्बाद हो चुके थे। ठीक है, यहाँ पोएट ने अब एक और का एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो है क्वीन, मतलब क्वीन का मतलब यहाँ वीनस जो रोमन गॉडेस है, ब्यूटी और लव की देवी मानी जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि वह समुद्र की झाग से उत्पन्न हुई थी और कमल के फूल पे तैरती हुई मिली थी। मतलब कमल जो तैर रहा था उसके फूल पे, बड़ा सा फूल था, उस पे वो बच्ची थी। अब चूंकि वो पिताहीन थी, पिता विहीन थी, फादरलेस थी, तो उनकी खुद की मनमानी चलती थी, वो जैसा चाहती वैसा करती थी। फादर होते हैं बेटा तो एक रेस्ट्रिक्शन होता है ना, एक दबाव होता है, एक पाबंदी होती है। अब चूंकि इनके फादर थे ही नहीं, तो अब वो बिल्कुल रेस्ट्रिक्शन लेस थी, जैसा मनमर्जी आए वो वैसा करती थी, सेल्फ विल्ड थी। अब इनकी मैरिज होती है हेफास्टस से, जो कि एक लंगड़ा सा कुरूप सा आयरन स्मिथ लुहार था देवताओं का। अब वीनस वो भी अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं थी, अपने हस्बैंड से सेटिस्फाइड नहीं थी, हालांकि उनका हस्बैंड काफ़ी अच्छा था। अब वो एरिस के प्यार में पड़ जाती हैं और विश्वासघात करती हैं अपने पति से। बाद में जब इनके विश्वासघात का पता चलता है तो इनको काफ़ी शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती है। तो यहाँ हेलेन ने भी अपनी लाइफ बर्बाद कर ली अपने घमंड में, सुंदरता के घमंड में। उनका जो उस समय का पति था वो उनके साथ निभा नहीं पाई और उनको बहुत सुंदरता की चाह थी, और सुंदरता की चाह में उन्होंने गलत व्यक्ति का चुनाव कर लिया। दोनों ने गलत व्यक्ति का चुनाव किया और दोनों ने अपनी जो लाइफ है वो पूरी की पूरी तबाह कर ली। तो क्या था वो? घमंड था उनका कि मैं इतनी सुंदर हूँ तो मेरा जो पार्टनर है वो भी सुंदर होना चाहिए, भले ही उसमें फिर कोई गुण हो कि मत हो। जिससे शादी हुई उनमें गुण थे, सुंदरता भले ही ठीक ठाक रही हो, लेकिन यहाँ पर उनको वो नहीं जम पाया। तो अपनी सुंदरता के घमंड में इन लोगों ने अपनी लाइफ को बर्बाद कर लिया। तो यहाँ पोएट बोलते हैं कि लगता है जो सुंदर स्त्रियां होती हैं वो पता नहीं अपने खाने में ऐसी क्या चीज़ खाती हैं कि इनका दिमाग पागल हो जाता है, या इनको सुंदरता का ऐसा क्या इनको घमंड हो जाता है कि इनकी जो नेचुरल क्वालिटीज़ होती हैं, जो हमने इसके पहले भी डिस्कस किया था, हार्ट रिवीलिंग इंटीमेसी और नेचुरल काइंडनेस, ये भी इनकी फेड अवे हो जाती है, ये ख़त्म हो जाती है। तो ऐसा क्या ये खाती हैं, ऐसा क्या ये इनके खाने में होता है, या क्या ऐसी चीज़ होती है जिससे ये ऐसी पागल हो जाती हैं अपनी सुंदरता के अभिमान में। यहाँ वो बोलते हैं कि हॉर्न ऑफ प्लेंटी था, मतलब ये प्रॉस्परस थी ये लेडीज, सुंदरता भी थी, धन संपत्ति दौलत सब कुछ था, लेकिन वो सब चीज़ें भी इनके काम नहीं आई, ये सब इनके लिए यूजलेस और वेस्ट हो गई। तो यहाँ बेटा इन्होंने 3 स्त्रियों का उदाहरण दिया है। मॉड गॉने का यहाँ क्लियर नहीं है, वो आगे अभी आएगा आगे के स्टेंजाज में। तो मॉड गॉने ने भी वही किया, इनके साथ धोखा किया, हेलेन ने भी वही किया, वीनस ने भी वही किया। तीनों ने एक जैसी स्थिति अपने आप की कर ली और तीनों ही अपनी लाइफ में अपने पूरे जीवन काल में परेशान रहीं। सिर्फ किसकी वजह से? सिर्फ अपने सुंदरता की वजह से। तो पोएट यही चाहते हैं कि इनकी बेटी सुंदर तो ज़रूर हो, लेकिन वो बस बहुत ज़्यादा सुंदर ना हो, इतनी सुंदर ना हो कि उसकी जो नेचुरल क्वालिटीज़ हैं वो उसमें दब जाए, ख़त्म हो जाए, और वो सुंदरता के घमंड में किसी का दिल तोड़ दे। ऐसा वो नहीं चाहते, जैसा उनके साथ हुआ वो वैसा नहीं चाहते कि उनकी बेटी ऐसा किसी के साथ करे। ठीक है बेटा, इतने स्टेंजास आपको 4 स्टेंजास समझ में आए होंगे। इसके बाद का जो स्टेंजास हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन बाय, थैंक यू।